Hey guys, welcome back to this series of sessions where we are going to talk about the first chapter of mathematics, that is rational numbers. So guys who do not know me, my name is Avi Arora. I am the maths teacher over here in GoPrep, and good afternoon to all the students. कैसे हैं सभी लोग in the chat quickly? Hi Kartike, hello Ravi, hello Renu. I hope guys everybody is doing good. Hi Ramneet Kaur. तो बच्चों यार आज अपन एनसीईआरटी क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं दैट इज रैशनल नंबर्स। ठीक है, आज अपन रैशनल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। तो बिफोर आई स्टार्ट विद द रैशनल नंबर्स, लेट्स गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट नंबर सिस्टम्स। के नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं, नंबर सिस्टम्स में क्या क्या टाइप के नंबर्स आते हैं। विल डू ऑल द काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। So let's not waste any more time. Let's quickly get going. Hello everyone. I hope all of you are doing it. Hi Ayushman. Hi Deepmala. Good evening. Hello Kashish. ठीक है बच्चों, तो यार आज फर्स्ट सेशन है। So we'll try to not skip any of the classes. Let's try to be regular. Do not miss any of the classes because these series of sessions are going to be very important for your school exams. ठीक है बच्चों, समझ में आती है ये बातें? तो यार बच्चों, मेरा नाम है अवी अरोड़ा एंड आई विल बी टेकिंग मैथ्स क्लासेस ओवर here at GoPrep. I graduated from Punjab University and since then I've been teaching mathematics to various students, various classes, even 9 to 10 and even JE, and I have many of my students are qualified for Olympiads and many more interesting exams, many more competitive exams. So that's my introduction. Now, before I start the session, let me tell you guys, over here at GoPrep's YouTube channel for class 8, we'll be conducting a daily session on any of the subjects at 4 p.m. over here. And maths classes, note kar lo, will be there every Saturday and Sunday. आपको every Saturday Sunday there will be a maths class over here. So हम लोग मिलने वाले हैं हर Saturday और Sunday को। ठीक है बच्चों, तो आज अपन फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने वाले हैं एंड दैट इज रैशनल नंबर्स। तो आज मैं सिर्फ नंबर सिस्टम्स की बात करूंगा कि यार ये जो नंबर्स का क्लासिफिकेशन है, ये जो टाइप्स ऑफ नंबर्स है, ये कहाँ से आए, और इनका इवोल्यूशन ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे। विल लर्न कि टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, फिर उनका वेरियस क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। सो आज का एजेंडा अगर सभी को समझ में आ गया है, and if you want me to start with the session, guys, give me a thumbs up in the chat and give me a thumbs up in the like as well. So यार हमारे पास कोई यहाँ पे YouTube पे तो कुछ अटेंडेंस का सीन होता नहीं है, अटेंडेंस का कुछ तरीका नहीं है कि मैं अटेंडेंस ले सकूं। तो there's only just one way where you can mark your attendance, that just like the session if you have not done that yet, and subscribe to our GoPrep's channel for class 8 because we will conduct a lot of interesting sessions over here. करें बच्चों स्टार्ट। सबसे पहले करते हैं इवोल्यूशन ऑफ नंबर्स की, कि नंबर्स आए कहां से। तो जब नंबर्स आए तो ये सब कहानी स्टार्ट कहां से, किसी को पता है कि यार ये नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी, है ना? नंबर्स की यार जरूरत क्यों पड़ रही? सबसे पहले यार लोगों ने कहा कि यार काउंटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी, कि यार नेम इज तरुण, ओके तरुण, आई ट्राई टू कीप दैट इन माय माइंड। ठीक, तो यार लोगों ने कहा कि यार काउंटिंग की बड़ी जरूरत हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल जब बिजनेस हो रहा था, बार्टर सिस्टम स्टार्टिंग में बहुत चलता था, तो यार किसी ने किसी को अगर कुछ दिया है, इन रिटर्न कुछ लिया है, तो उसका गिनना बहुत जरूरी हो गया था, उनको काउंट करना बहुत जरूरी हो गया था। So in the beginning, the first thing that was required is to count. That's what led to the origin of counting numbers. Audio clear नहीं है, कार्तिक शर्मा says. How many of you feel that the audio is not clear? How many of you are finding the issue with the audio? In the chat सभी लोग बताएंगे मेरे को। ठीक है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट थी काउंटिंग की। तो लोगों ने कहा कि यार जो चीजें हम अपनी फिंगर्स पे काउंट कर सके, या फिर इनसे आगे ज्यादा काउंट कर सके, या हम अपने उंगलियों पे गिन सके, दैट्स व्हाट आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। तो लोगों ने सबसे पहले इन्वेंट किए काउंटिंग नंबर्स। फर्दर फिर क्या हुआ, जब काउंटिंग नंबर्स आए तो लोगों ने कहा यार इसको कुछ नाम देना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो लोगों ने कहा क्यों नहीं इनको बोला जाए नेचुरल नंबर्स, क्योंकि ये नेचुरली अकर कर रहे हैं, हमारी उंगलियों पे अकर कर रहे हैं, तो उसको हमने कहा नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स के फॉर एग्जांपल लेट्स से कि यार आप 3 फ्रेंड्स हैं, so 1 2 3 you can count that in on your fingers,
3 friends, that's an example for natural numbers. फिर लोगों ने कहा जैसे आइसक्रीम है, तो ये सब चीजें जब गिनने की जरूरत पड़ी तो हमने कहा कि let's start with the counting numbers. Rational numbers are a by b where b is not equal to 0. Am I right? Absolutely Kashish, बिल्कुल to the point definition है ये. ठीक है. I am the regular student in app and YouTube. Okay, that's great. I hope it's been helping you a lot. चलो, तो फिर हमने पढ़े काउंटिंग नंबर्स को नाम दे दिया नेचुरल नंबर्स. दैट्स इट. तो नेचुरल नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर्स है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड कीप ऑन गोइंग अप टू इन्फिनिट नंबर्स. बहुत सारे नंबर्स को लिख दो और हमारे पास नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे. ठीक है. जब नेचुरल नंबर्स हो गए, फिर लोगों ने कहा यार अभी भी मजा नहीं आया. फिर लोगों ने नेक्स्ट इंट्रोड्यूस क्या किया? जीरो का इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट आया जीरो इन्वेंट हुआ. तो कितने बच्चों को पता है कि जीरो किसने इन्वेंट किया है? कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? अमित भाटी सेज यस. व्हाट्स योर क्वेश्चन अमित? हाउ मेनी ऑफ यू नो हु इन्वेंटेड जीरो? जीरो किसने इन्वेंट किया? देखो जीरो कहां से आया, ये बड़ी हम लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं बचपन से. गुड इवनिंग आ रहे हैं बट दैट्स राइट. एक्चुअली होता क्या है ना मैथ्स में कि जिसने स्टार्टिंग में फर्स्ट उसको पब्लिश किया, इंडियंस. दैट्स राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट. जिसने स्टार्टिंग में उसको पब्लिश किया या फिर स्टार्टिंग में जिसने फर्स्ट उसको यूज किया, दैट्स व्हाट वी से कि यार इसने इन्वेंट किया. फॉर एग्जांपल कि यार जीरो बहुत पहले से यूज हो रहा था, बट उसको डिफाइन किसने किया? उसको डिफाइन आर्यभट्ट ने किया था. फॉर एग्जांपल कि इससे पहले हम जीरो से पहले हम प्लेस होल्डर को यूज कर रहे थे. प्लेस होल्डर का मतलब क्या है? कि खाली स्पेस यूज कर लो. फॉर एग्जांपल अगर मेरे को बोलना है 205, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 205 पहले प्लेस होल्डर को यूज करते थे, मतलब कि विल जस्ट लीव अ स्पेस ओवर हियर, तो दैट इज 205. लोगों ने कहा कि जहां कुछ नहीं है वो जीरो है. ठीक है. तो जीरो इन्वेंट हुआ इंडिया में. दैट्स राइट. ठीक है. तो पहले हम प्लेस होल्डर यूज करते थे, फिर एज अ नंबर जीरो का इन्वेंशन हुआ. आर्यभट्ट ने कहा कि यार इसको सिंपली तुम खाली जगह मत छोड़ो, उसके यहाँ पे एक जीरो लगा दो, एक सर्कल लगा दो, दैट्स व्हाट विल रिप्रेजेंट जीरो. ठीक है. इसका पहले भी इसको यूज किया था ब्रह्मगुप्ता ने. आर्यभट्ट से पहले इसको ब्रह्मगुप्ता ने यूज किया हुआ था, बट अगेन उसको डिफाइन, जो उसका एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है जिसको एक सिंबल भी दिया, वो आर्यभट्ट ने दिया है. So we say that it's been invented by आर्यभट्ट, बट काफी लोगों का इसमें अपना कुछ ना कुछ लोगों ने अपना पार्टिसिपेशन है सबका. So that's सिर्फ everybody is many scientists are involved, many mathematicians are involved in the invention of zero. ठीक है. That's right. घातक आदि at first ब्रह्मपुत्र invented zero. ठीक है. बट ये सब हुआ सब इंडिया में ही है, तो इसमें मेन रोल हमारे इंडियंस का ही था. ठीक है. तो जब जीरो आया तो लोगों ने कहा कि यार इनको कलेक्ट करके साथ में बोल दिया हमने कि ये है होल नंबर. जब जीरो भी इंक्लूड कर लिए तो लोगों ने कहा इन सबको अब ले लो होल नंबर्स, मतलब कि सारे नेचुरल नंबर्स और उसमें एक जीरो भी डाल दिया तो नेट बन गया होल नंबर्स. क्लियर है सभी को? तो हमारे पास यहाँ से आ गए होल नंबर्स और जीरो और बाकी सारे नेचुरल नंबर, कुल मिला के हमने कहा कि ये सारे हैं होल नंबर. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास जब होल नंबर्स आए तो लोगों ने कहा कि यार अभी भी बात नहीं बन रही है. फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ आई गिव यू 10 चॉकलेट्स, तो मैंने तुम्हें 10 चॉकलेट्स दिया था, लेकिन मुझे क्या मिला? तो मुझे मिले -10 चॉकलेट्स. तो लोगों ने कहा कि जब हम दे रहे हैं तो हमने उसको एज अ पॉजिटिव गिना, बट दिस लेड टू द अनदर थिंग दैट कि नेगेटिव नंबर्स भी होने पड़ेंगे. कि अगर कोई दे रहा है तो उसको पॉजिटिव ले ले, तो कोई ले रहा है तो उसको नेगेटिव भी करना पड़ेगा. तो फिर लोगों ने कहा कि नेगेटिव नंबर्स को इंट्रोड्यूस करो. तो नेगेटिव नंबर्स को काफी जगह एप्लीकेशन है. फॉर एग्जांपल थर्मामीटर अगर आप देखो, थर्मामीटर में यू कुड सी द टेम्परेचर कैन बी नेगेटिव एज वेल. फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट द लैटिट्यूड्स, इफ यू टॉक अबाउट द एक्स एक्सिस, इफ यू टॉक अबाउट द जनरल रियल नंबर सिस्टम्स, या फिर इफ यू जस्ट टॉक अबाउट द नंबर लाइन की अगर बात करें, या फिर हमने बाद में जब हमने कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा तो लोगों ने कहा कि यार नेगेटिव नंबर्स की भी जरूरत है, नेगेटिव साइड भी लानी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी. देन वी इंट्रोड्यूस्ड नेगेटिव नंबर्स. इसका एग्जांपल आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, थर्मामीटर, अ वेरी सिंपल एग्जांपल, दैट्स वेरी कॉमन एग्जांपल. टेम्परेचर्स कैन बी नेगेटिव ओवर हियर, दैट्स व्हाट वी हैव
लर्न सो फास्ट। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर्स भी आ गए। फिर आते हैं इंटीजर्स। तो अब क्या हो रहा है, जब नेगेटिव नंबर्स पे इंट्रोड्यूस हो गए तो लोगों ने कहा कि अब एक काम करो, इन सबको साथ में ले लो, इन सबको साथ में मिला दो, एंड इन टोटल लेट्स से इन सबका नाम रख देंगे हम इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स में क्या क्या आएगा बच्चों? इंटीजर्स में हमको जो जो पढ़ा है अभी तक सब इंक्लूड करना है। फर्स्ट नेचुरल नंबर पढ़े, इसमें इंक्लूड होंगे, नेचुरल नंबर्स गेट्स इंक्लूडेड। व्हाट एल्स? सेकेंडली हमने पढ़ा होल नंबर्स या फिर जीरो, इवन दोज गेट्स इंक्लूडेड इन दीज। होल नंबर्स या फिर जीरो भी इंक्लूड होंगे। थर्ड हमने पढ़े नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स भी इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो इन सबको मिला के जो नंबर्स आए वो सबको क्या बोलना है? उन सबको हमें बोला इंटीजर्स। ठीक है, इन सबको हमने कहा ये सब क्या है? दीज आर दी इंटीजर्स। ठीक है, जब इंटीजर्स भी आ गए फिर उसके बाद क्या हुआ? नेक्स्ट जो नंबर हमने इंट्रोड्यूस किया, जो नेक्स्ट नंबर्स हमने देखा कि यार इनकी भी रिक्वायरमेंट है, वो कौन से हुए? वो हुए फ्रैक्शंस। फिर नेक्स्ट कौन से नंबर्स आए बच्चों? फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस कैसे आए? जब लोगों ने चीजों को बांटना चालू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक केक को दो लोगों में बांटना है तो हमने उसको कट किया, तो वहां से स्टार्ट हुए रैशनल नंबर्स, सॉरी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन स्टार्ट हुआ वहां से। सर प्लीज आंसर। कल से टुमारो ऑनवर्ड 7 days मिनी कोर्स स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो अभी तक इंटीजर्स पढ़े। इंटीजर्स में क्या क्या है? काउंटिंग नंबर्स आ गए, पॉजिटिव नंबर्स, जीरोस और नेगेटिव नंबर्स भी आ गए। फिर कौन इंट्रोड्यूस हुआ? फिर आए फ्रैक्शंस हुए। अब फ्रैक्शंस कितने टाइप के होते हैं? कौन बताएगा इन द चैट? हाउ मेनी टाइप्स आर फ्रैक्शंस? फ्रैक्शंस हमने कितने टाइप के पढ़े हुए हैं? फ्रैक्शंस भी सिर्फ एक टाइप के नहीं है, फिर हमने आगे बहुत तरह के फ्रैक्शंस पढ़े थे, फिर उनका कन्वर्जन पढ़ा था। आई थिंक ये हम प्रीवियस ग्रेड्स में ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट? सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टू टाइप्स? वेरी गुड कशिश, पढ़ा दोस टू टाइप्स, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर हमने दो टाइप के फ्रैक्शंस पढ़े। फर्स्ट अपन ने पढ़ा प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड सेकेंडली वी डिड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा और हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? नवाड़ा प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, या फिर वो सारे के सारे फ्रैक्शंस जो लेस देन 1 हो। मिक्स्ड पे भी आता हूं मैं। तो इम्प्रॉपर को हम फर्दर वी कैन कन्वर्ट इन मिक्स्ड फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने दो टाइप के फ्रैक्शंस पढ़े, प्रॉपर पढ़ा, इम्प्रॉपर पढ़ा, और फिर इम्प्रॉपर को हम फर्दर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेट हमने 3 तरह के फ्रैक्शंस पढ़े हैं। अब ये तीनों में डिफरेंस क्या है सभी को पता होगा। फिर लोगों ने कहा कि यार यहाँ पे 3 तरह के फ्रैक्शन इंट्रोड्यूस होने जरूरी है। क्यों? फर्स्ट क्या है? फर्स्ट क्या है कि अगर वैल्यू लेस देन 1 है, फॉर एग्जांपल एक ही चीज अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, देन वी से इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर एक से ज्यादा चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो रही है या किसी एक को एक से ज्यादा मिल जाए, then we say it's an improper fraction. For example, if I am saying that I got half cake, that means it's a proper fraction. But if I say I get 3/2 parts of cake, that means that's an improper fraction, which can further be converted to mixed fraction. That means 1.5 cakes. ठीक है, तो अभी तक फ्रैक्शंस भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, तो सारे इंटीजर्स इंट्रोड्यूस हो गए, फ्रैक्शंस हो गए। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आता है? Hi, Diamond Flyer says he's a new student. That's great, Diamond Flyer. Yeah, this is the first session, so you have joined at the right time. Good afternoon. Clear है सभी को यहाँ तक? Anyone has any doubt? Do let me know in the chat or let's move further. चलो perfect. तो हमें यहाँ तक पता लगे फ्रैक्शंस भी क्या क्या होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, what are fractions and what are the types. फिर जब ये सारे नंबर्स इंट्रोड्यूस हो गए तो लोगों ने कहा कि अब इनको कर दो एड अप, कि ये सारे के सारे कलेक्टिवली दे विल call them rational numbers. तो फिर इंट्रोड्यूस हुए रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या है? इसके अंदर नेचुरल नंबर आएंगे, इसके अंदर जीरो आएगा, इसके अंदर होल नंबर्स आएंगे, इसके अंदर इंटीजर्स आएंगे, इसके अंदर फ्रैक्शंस भी आएंगे। कैसे कैसे? पॉजिटिव फ्रैक्शंस भी आएंगे और नेगेटिव फ्रैक्शंस भी आएंगे। तो फिर लोगों ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना इनको एक डेफिनेशन दी जाए, that all the numbers which can be written in the form p by q, where p and q
आर इंटीजर्स, कि बोथ p और q क्या हो, दोनों p और q बन जाए इंटीजर्स। ठीक है, p और q दोनों को बना दो इंटीजर्स, देन वी से दैट दीज आर रैशनल नंबर। पर यहाँ पर एक चीज का खास ध्यान रखना है, दैट इज q कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, वेरी इंपॉर्टेंट। जो डिनोमिनेटर होता है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता किसी भी हाल में। ठीक है, ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q आर द रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल अब तुम बोलोगे कि सर जीरो जो है, क्या जीरो एक p by q फॉर्म है? Yes, can 0 be written in the form 0 be written in the form p by q? Let's see how many students can tell me that. Can we write 0 in p by q form? अभी हमने कहा कि q तो 0 नहीं हो सकता, तो how can you write p 0 as p by q form? Any number which can be expressed as p upon q is a rational number. That's right. ठीक है, तो कितने बच्चे बताएंगे यार कि 0 p by q फॉर्म क्यों है? एंड गाइस मेक श्योर दैट यू लाइक दिस सेशन राइट अवे। इफ यू आर एंजॉयिंग दिस सेशंस, इफ यू आर able to solve these questions quickly like the session, that's absolutely right. दीपमाला ने बिल्कुल सही बोला, 0 by 1 you can write it as 0 by 1। ठीक है, तो जिसका कोई नहीं होता, एक बात हमेशा याद रख लो, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। तो जिसका डिनोमिनेटर में कोई नहीं था उसका ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर में 1 था, देयरफॉर 0 by 1 can be written as 0 itself. So 0 is a p by q form where q is 1। ठीक है, सिमिलरली बहुत सारे नेगेटिव फ्रैक्शंस भी इस पे इंक्लूड है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करो तो -2/3 प्लस 5/3, ये सब नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शंस को भी हमने इंक्लूड करना है रैशनल नंबर्स में। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े साथ में पॉजिटिव फ्रैक्शंस, नेगेटिव फ्रैक्शंस, इनको कंबाइन जब करोगे तो यू विल गेट द होल सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। कितने बच्चों को रैशनल नंबर्स का फंडा समझ में आ गया है? हाँ जी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड द फंडा फॉर रैशनल नंबर्स? इज इट क्लियर? क्लियर है? चलो परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, तो ये हो गए रैशनल नंबर्स। अब बात करते हैं इनके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है, तो यहां पर आए, फिर बात करेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में क्या आएगा कि अगर किसी रैशनल नंबर को हम डेसिमल में लिखें, फॉर एग्जांपल डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बोल रहा था मैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, अगर इनको डेसिमल में लिखना है, फॉर एग्जांपल अगर 3/2 है तो ये होता है 1/5, या फिर 3/10 है, दिस इज 0.3। तो ये इस तरह के नंबर होते हैं। या फिर सेकेंडली, दो तरह के नंबर पढ़ने, फर्स्ट ये मैंने बताए हैं, सेकेंडली ये तरह के नंबर 1/3। इसको सॉल्व करोगे लॉन्ग डिवीजन से तो यू विल गेट 0.333333 फॉर एग्जाम्पल अगर आप सॉल्व करते हो 1/1 लेट्स से 6, तो 1/6 क्या हो जाएगा? 0.1666666। तो ये सब जो है दो तरह के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होते हैं रैशनल के। इसको कहा जाता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, इसको टर्मिनेटिंग क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि ये खत्म हो गया है, ये बढ़ता नहीं जा रहा है, तो दीज आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स, वो डेसिमल्स जो टर्मिनेट नहीं होते हैं और रिपीट होते रहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स, दो तरह के डेसिमल्स पढ़ते हैं हम रैशनल के। फर्स्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल, सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग क्यों? अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर यार ये 3 रिपीट हुए जा रहा है, या फिर यहाँ देखो तो ये 6 रिपीट होता जा रहा है। तो दो तरह के डेसिमल्स पढ़ेंगे, टर्मिनेटिंग एंड देन इट्स द नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है,
क्लियर है सभी, समझ में आ गई यहाँ तक बात? तो ये दो तरह के डेसिमल्स हम पढ़ते हैं, दीज आर द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। चलो ठीक है, अब बात आती है 3 के ऊपर लाइन होती है, यू कैन डू दैट, यू कैन इफ यू वांट यू कैन राइट इन दैट वे, आप उसको 3 के ऊपर लाइन लगा के भी रिप्रेजेंट कर लो, उस लाइन को बोलते हैं विंकुलर। सो अगर सारे बच्चों को रैशनल नंबर तक का और उनके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का फंडा समझ में आ गया है तो गिव मी थम्स अप इन द चैट एंड लेट्स मूव फर्दर। क्लियर है सभी को, समझ में आ गई यहाँ तक ये बात? हाँ बच्चों, चलें आगे, चलें आगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? Sir, so if -1/0 is not defined, no, -1/0 or any number divided by 0 is not defined. You cannot define that. अब ये क्यों होता है ये हम पढ़ेंगे 11th क्लास में, ठीक है? चलो ठीक है, नेक्स्ट नाउ लेट्स टॉक अबाउट इरैशनल नंबर्स। इसके बाद कौन से नंबर्स आएंगे? इरैशनल नंबर्स आएंगे। इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? लेट्स सी इफ यू कैन टेल मी इन द चैट। अभी अपन ने पढ़े रैशनल नंबर्स, फिर बात आएगी इरैशनल नंबर्स की। Guys, don't fight over here in the chat. I hope all of you are grown up. Act like one. ठीक है? No abusing. No need to reply if you are finding that someone is disturbing you. ठीक है? Now next is irrational numbers. Rational numbers हो गए, फिर बात आती है irrational numbers की, जो p by q फॉर्म के नहीं होते, जो रेशो में नहीं हो सकते। That's absolutely right कार्तिक आयुष्मान, कि यार अभी अपन ने पढ़े कि रैशनल वो नंबर्स हैं जिसको आप p by q फॉर्म में लिखो वेयर p and q आर इंटीजर्स, बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर इरैशनल नंबर्स। तो लोगों ने कहा कि अब इरैशनल नंबर्स को इंट्रोड्यूस कर दो, मतलब कि इरैशनल नंबर कौन से हैं? जो p by q में नहीं है, जो रैशनल नहीं है, उनको हम बोल देंगे इरैशनल नंबर्स। एग्जाम्पल अगर लिखूं तो दो टाइप के जनरली नंबर्स होते हैं इरैशनल। फर्स्ट टाइप के होते हैं स्क्वायर रूट क्यूब रूट टाइप के, कि √2 या फिर √3 या फिर क्यूब रूट ऑफ 3, ऑल दीज आर इरैशनल नंबर। सेकेंडली होते हैं पाई, और एक और नंबर होता है, इसको हम बोलते हैं यूलर्स नंबर। इसके बारे में हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। नाउ कैन यू टेल मी, इज पाई एन इरैशनल नंबर और रैशनल नंबर? If it's an irrational number, then why do we say it is equal to 22/7 and 22/7 तो rational है? I have a question that is pi a rational or irrational, or is it equal to 22/7? 22/7 is a rational number. Now if pi is equal to 22/7, if pi is equal to 22/7, then क्या पाई इरेशनल हुआ कि रैशनल हुआ? अगर मैं पूछूं कि क्या पाई 22/7 है, yes or no? My question to all the students, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं इसको। Is pi equal to, first option 22/7, second option is 3.14, थर्ड ऑप्शन बोथ, दोनों के बराबर है, फोर्थ ऑप्शन नन, किसी के भी बराबर नहीं है। हाँ जी, लेट्स सी कौन बताता है। इट इज बिकॉज 22/7 इज नीदर अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन, गलत गलत गलत, डायमंड फायर आपका आंसर बिल्कुल गलत है। ऐसा क्यों है मैं बताऊंगा, अभी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? बोथ गलत। और कैसे हो सर, क्या बात है, मैं बढ़िया भाई अक्षत, तुम कैसे? सर ऑप्शन 3 गलत, 3.14 गलत, बोथ गलत है, 3.14 गलत है, 22/7 भी गलत है। पाई इनमें से किसी के बराबर नहीं है। पाई इज नॉट इक्वल टू एनी ऑफ दीज। पाई जो है ना तो 22/7 के बराबर है, ना 3.14 के बराबर है, ना इन दोनों के बराबर है। इफ यू लुक इनटू द डेफिनेशन, क्या मैं कह सकता हूं कि दिस इज अ p by q फॉर्म नंबर, दिस मस्ट बी रैशनल। ये जो नंबर है ये रैशनल है, एंड दिस नंबर इज अगेन रैशनल, दिस इज अ रैशनल नंबर अगेन सिंस इट्स टर्मिनेटिंग डेसिमल। बट पाई तो कैसा नंबर है? पाई इरैशनल नंबर है। Therefore the answer for this question is it's not equal to none। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हमारे दिमाग में ये बात कब फीड हो गई
कि पाई 22/7 है या पाई 3.14 है, हमें ऐसा क्यों लगता रहा कि पाई की वैल्यू इन दोनों में से कोई एक है? उसके पीछे सिंपल सा रीजन है, इफ यू लुक इनटू द क्वेश्चंस दैट वी हैव डन सो फार, तो वहां पे क्लियरली एक चीज मेंशन है। क्या मेंशन्ड है? दैट अज्यूम पाई टू बी 22/7 और अज्यूम पाई टू बी 3.14। तो हमने क्वेश्चन जो लिखा है, हमने जो क्वेश्चन में यूज किया था उसने कहा अज्यूम कर लो, you use pi as 3.14। वो क्यों है? to make our calculation easy, to make our calculations more easier, that's why we use pi as these value but are not equal to these values। ठीक है, हम इसको लेते हैं to make our calculations easier, आसान बनाने के लिए, पर इक्वल नहीं है। so, क्या प्रॉब्लम क्या है? that 22/7 and 3.14 are approximate values of pi, are approximate values of pi, not exact values of pi, not exact। इस बात को अच्छे से गांठ बांध के समझ लो, ठीक है? सर आई यूज टू मेक RS अग्रवाल मैथ्स बुक, बंद क्यों कर दिया? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फैमिली ट्री, अब बात करते हैं कि यार इन सब जो नंबर्स को पढ़ा है उन सबको समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन किस किस टाइप का नंबर है। तो सबसे पहले सारे नंबर्स का भगवान है जो नंबर, वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स इंक्लूड्स ऑल द टाइप्स ऑफ नंबर्स वी हैव डन सो फार, भले ही वो रैशनल हो, इरैशनल हो, इंटीजर, फ्रैक्शन, होल नंबर, नेगेटिव नंबर, जीरो, पॉजिटिव, कुछ भी हो। सब के सब नंबर कैसे होते हैं? ऑल दीज नंबर्स आर रियल नंबर्स। सो ऑल द नंबर्स वी हैव डन सो फार, वी इंक्लूड देम इन द रियल नंबर्स। ऑल दीज नंबर्स पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। सबसे पहले भगवान आए, कौन सा भगवान है? भगवान ऑफ ऑल नंबर्स इज रियल नंबर्स। फिर रियल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स फर्दर, फर्स्ट इज रैशनल, द अदर वन इज इरैशनल। रैशनल कौन से हैं? जो p by q फॉर्म के होते हैं। इरैशनल कौन से होते हैं? जो p by q फॉर्म के नहीं होते हैं। What are irrational numbers? अभी बताया, the number which are not rational, which you cannot write in the form p by q. So first one is rational we did, second one is irrational. Now further rational numbers are of two types. First it's integer or it can be a fraction. It can be an integer or it can be a fraction. Now fraction are of three types, already we have discussed about that. Now what are those three types? Proper fractions, improper fractions and mixed fractions. Moreover integers भी दो टाइप के होते हैं, हमने पढ़े हैं कौन कौन से? या तो वो होल नंबर होंगे, दैट मींस जीरो एंड ऑल द काउंटिंग नंबर्स, और इट कैन बी अ नेगेटिव नंबर। फिर होल नंबर्स भी फॉर द टू टाइप्स के वी हैव डन दैट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, दैट इज either they can be positive, natural or counting numbers, or it can be a zero. Now Rekha Dubey says I have a doubt. What's your doubt, Rekha? So this is the family tree of all numbers, this is the classification of the numbers. अभी रियल नंबर्स जो हमने बोले कि टॉप मोस्ट है, इसके ऊपर कोई नहीं होता, इसके ऊपर भी नंबर्स होते हैं, बट वो भी हमारे कोर्स में नहीं है। 11th क्लास में हम और पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है? क्लियर है सभी को? सामने आपके मैंने सारे टाइप ऑफ नंबर बता दिए। साक्षी नवानी सेज आई हैव डाउट। यार गाइस इफ यू हैव डाउट, हो डाउट फटाफट चैट में बताओ, या फिर आगे चलते हैं। जो डाउट है पूछ लो फटाफट चैट में, देन आई विल मूव फर्दर विद द नेक्स्ट टॉपिक। अगर सभी को ये समझ में आ गई ये चीजें, तो दो क्वेश्चंस हैं, let's see if you can answer those questions. Guys, ask your doubt instead of writing ki what I have a doubt. I get it that you guys have a doubt, and do ask me in the chat. And if you guys are able to understand all the types of number classification, don't forget to like this session. Sir RS अग्रवाल की बुक का कब समझाओगे? Don't worry about it, मैं भली RS अग्रवाल हो, RD शर्मा हो, उन सब टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे लेने वाला हूँ। Sir, is there types of rational number? Yes, I have written over there. Integer और fraction लिखा हुआ है ना। रियल नंबर्स के जितने भी नंबर आज पढ़ाए हैं ना मैंने, स्टार्टिंग से लेके वेरी फर्स्ट मोमेंट काउंटिंग से लेके इरैशनल तक, सबको मिला लो, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब रियल नंबर्स हैं, ठीक है? आई होप आई आंसर्ड योर डाउट। ठीक है, डायमंड फ्लैट्स, आई एम इन क्लास 7 बट स्टिल आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। काफी स्मार्ट बच्चे बैठे मतलब यहाँ पे, ठीक है? चलो ग्रेट, ओके क्वेश्चन करें। लेट्स टेक टू क्वेश्चंस, लेट्स सी कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। नेक्स्ट टाइम मेंटी क्विज, चलो पक्का नेक्स्ट टाइम विल कंडक्ट अ मेंटी क्विज। चलो क्वेश्चंस करें बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर जीरो? कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो जीरो की ट्रू है? ठीक है, लेट्स सी। अभी तो मेंटी नहीं है, तो यहाँ पे चैट में सबको आंसर करना है, देखते हैं ABCD है, चार ऑप्शंस, लेट्स सी हु आंसर्स फर्स्ट, ठीक है? Which of the following property is true for zero? Positive, negative, neither negative nor positive, or both negative and positive.
जीरो कैसा नंबर है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कोई भी नहीं इन दोनों में से, या दोनों ही है? हाँ जी, किस टाइप का नंबर है जीरो? बी। साक्षी से बी गलत है। सी विठल गवाली ने बोला बिल्कुल सही है। सी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। आयुष्मान और कशिश, डायमंड फ्लैग, इन सबका सही नंबर, सही आंसर है। दैट्स राइट कि जीरो जो है ना तो ये पॉजिटिव नंबर होता है ना ये नेगेटिव नंबर होता है। तो एक बार नंबर लाइन को ध्यान से देखो, यहां पर जीरो है, इस तरफ सारे पॉजिटिव नंबर, इस तरफ सारे नेगेटिव नंबर, बीच में कौन है? बीच में जीरो है। इट कैन नॉट बी पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट्स नॉट अ पॉजिटिव नंबर, इट्स नीदर अ नेगेटिव नंबर, इट्स नन ऑफ दीज। इसका आंसर आ जाएगा सी। क्लियर है? सभी को समझ में आ गई ये बात? हाउ इज इट पॉसिबल? व्हाट्स नॉट पॉसिबल? होता है, क्या दिक्कत है इसमें, है ना? इस तरफ वाले लोगों ने कहा सारे पॉजिटिव है, इस तरफ सारे नेगेटिव है, बीच में जीरो पड़ा है, ना ये पॉजिटिव ना ये नेगेटिव। क्यों यार? जीरो को प्लस जीरो लिख दो, माइनस जीरो लिख दो, जीरो को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, जीरो को कुछ भी लिख सकते हैं। देयरफॉर वी से दैट कि ये नंबर जो है ये ना तो पॉजिटिव मानेंगे इसको, ना नेगेटिव मानेंगे। नेक्स्ट, जीरो कैसा नंबर है? फिर से अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर जीरो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर जीरो? जीरो इवन है, ऑड है, नहीं है, दोनों ही है? इवन नंबर है जीरो, ऑड नंबर है जीरो, दोनों है, या एक भी नहीं है इनमें से? टी ए। सबसे पहले NSY Vlogs का सही आंसर आया, ए इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। विठल ने भी सही आंसर बताया। ओके, रेखा दुबे बिल्कुल सही है। गाइस द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, जीरो इज एन इवन नंबर। हमको लगता है कि जीरो ना तो इवन है ना ऑड है, बट दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। जीरो इज एन इवन नंबर। अब तुम पूछोगे ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है, सबसे पहली चीज, इवन की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इवन? इवन की डेफिनेशन है, इफ अ नंबर इज सेड टू बी इवन इफ ऑन डिवाइडिंग बाय, if on dividing by 0, if on dividing by 2 रिमाइंडर इज 0। किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम बोलेंगे ये तो नंबर है इवन। और वी से इफ इट इज डिविजिबल बाय 2, इफ इट इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। और ऑड की क्या है? इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2 मतलब कि रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आना चाहिए। तो जब आपने 0 को 2 से डिवाइड किया तो 0 आया। किसी भी नंबर को डिवाइड करने पे 0 आ रहा है किसी भी नंबर से, तो हम कहेंगे कि यार ये तो एक इसमें रिमाइंडर नहीं आ रहा, दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल। नाउ सिंस अगर आप किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो और आपको एक इंटीजर मिल जाए इन रिटर्न, इन रिजल्ट इफ यू गेट एन इंटीजर, that means it is divisible, that means it is divisible। तो हम बोलेंगे कि 0/2 0 आ रहा है, therefore ये तो divisible है 2 से, therefore the answer is even number। 1 divisible नहीं है, 1 odd है, -1 odd है, -3 भी odd है, -2 even है, ठीक है। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन? आई होप इट्स क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स। गाइस हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? Now I have got a bonus question for you all. What you have to do, I'll show you a question over here and take your time and answer in the comments. You'll get the answer to this question by next session or maybe by tomorrow. By tomorrow morning, you'll get the answer of this question in the comments. सभी लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है, यहाँ पर चैट में आंसर करने की जरूरत नहीं है। टेक योर टाइम, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आराम से सोचो इसके बारे में एंड इसको कमेंट्स में once you get the final आंसर करना है, ठीक है। Which of the following is true for zero? Again एक सेम क्वेश्चन, कौन सी प्रॉपर्टी जीरो के लिए सही है? क्या जीरो प्राइम नंबर है, कंपोजिट है, बोथ है, एक भी नहीं है? ठीक है, ट्राई करना, कमेंट्स में मेरे को इसका आंसर बताना। एंड गाइस मेक श्योर दैट यू अटेंड ऑल द सेशंस एट 4 PM एवरी डे। वी कंडक्ट अ सेशन ओवर हियर, संडे सैटरडे मैथ्स का सेशन होगा। नाउ टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग विद द 7 days mini course for 8th to 10th grade. For 8th grade we'll be taking the chapter force and pressure and physics. It will be taught by Nirbhay sir. And for if you have any other friends or seniors in class 9th and 10th, you can share these courses with them as well. Fees is written on your screen. Now if you want to enroll in these courses, you can reach out to us on the number on your screen.
ठीक है. Now if you want the PDFs for these class notes, you should join our Telegram channel over there. Then we'll keep on posting all the updates and the PDFs over there. We are on Facebook as well, so guys, make sure that you follow us on Facebook. And if you have not yet downloaded the GoPrep app, make sure that you download the app, because we are conducting lots of interesting sessions over there in our app as well. And I hope सभी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा. ठीक है. Now, is there anyone who has any doubt or any query? Sir, comments are not visible. अभी comments नहीं आएंगे. जैसे ही वीडियो खत्म होगा, then you will be able to see the comments. ठीक है. So that's all from my side. This is me, Avi Arora, signing off. See you guys next time for the next session. Bye bye everyone. Take care.